Well, hello everyone. Welcome to my channel, and I hope all of you are doing fine. And दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बेसिकली एक नई एडवेंचर टूरर बाइक आई है मार्केट में। एंड ऑनलाइन मैंने नोटिस किया काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, यूट्यूब एंड इट्स ऑल एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा and title and description say. So I just want to give my 2 cents about the newly launched Honda NX 500. So what I'm observing is that every motovlogger, every biker has shown a keen interest in this bike. Okay, it was not long back when it was first launched as the CB500X. And although globally इस बाइक ने बहुत अच्छा मार्केट बनाया, but somehow in India people were not very keen because of the exaggerated price at that time. And it was not built for that time also. About 2-3 years back this bike was introduced. तो आज के टॉपिक के बारे में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि ये बाइक Honda NX 500, who should buy this bike and who should not buy this bike. So सबसे पहले शुरू करते हैं who should buy this bike. So there are few pointers. देखिए, सबसे पहले अगर आप एक छोटी बाइक राइड कर रहे हैं विच इज़ मे बी इन द 150 सेगमेंट, सीसी सेगमेंट, 200, 250, 350 सेगमेंट, एंड अगर आप वहाँ से अपग्रेड करना चाहते हैं टू लिटिल बेटर, लिटिल बिगर बाइक, सो दिस इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू. ओके, एंड बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. अगर आप टूरिंग के लिए सीरियस है और अगर आप एक छोटी बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड अपग्रेड. ओके, the second type of people who should actually upgrade to this type of bike is those who are more worried about quality, reliability, low maintenance costs. Okay, so because we all know that ये Honda है, okay, and its engine is bulletproof, and the maintenance and repair, everything in the long run is cheaper compared to other brands, okay, which have bikes same segment. So अगर आपके लिए maintenance, reliability, dependency एक factor है, then you should go for this bike. Okay, and the third thing is for those people who actually prefer quality over money. So even though ये एक low price, I would not say low, एक basic price पर launch हुई है एक showroom 5,90,000, still on road I am in Pune. So on road ये चली जाती है 7.7 lakhs, which is still quite high for a 500cc bike. And considering the fact that it is a CBU unit, so 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उस पर डेफिनेटली ज़्यादा आएगा ही प्राइस. So if you are looking for quality above cost, then you should definitely go for this bike. Okay, and जो लोग टूरिंग को लेके सीरियस हैं and they want a bike which they want to keep for a longer time, then you can go with Honda NX 500. Okay, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि who should not buy this bike. Okay, मैं बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या उसके बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज एज यू ऑल नो आजकल लोग ऑनलाइन सब डेटा अवेलेबल है, लोग रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं पहले से ही. इनफैक्ट जब मैं इस बाइक के टेस्ट राइड लेने के लिए मल्टीपल टाइम शोरूम भी गया, so the salesperson and stuff, they were not interested to even talk about the features because they know कि आजकल का बायर जो भी आता है कोई प्रोडक्ट देखने को पहले से रिसर्च करके आता है. So now I'll tell you who should not buy this bike. First of all, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मिड सेगमेंट टूरिंग बाइक है या एडवेंचर बाइक है या क्रूज़र बाइक है, मे बी इन द 500cc, 650cc, then you should not upgrade because आपको सिर्फ इसमें क्या फ़र्क दिखेगा, पावर एंड टॉर्क फिगर्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा. फॉर इंस्टेंस मैं आई ओन 2 बाइक्स, आई ओन अ थंडरबर्ड 500 एंड इंटरसेप्टर 650. सो बेसिकली आप देखोगे अगर पावर एंड टॉर्क फिगर्स 40 न्यूटन मीटर्स इज़ द टॉर्क एंड पीक पावर इज़ अराउंड 46 और 47 bhp, कम्स अराउंड 5000 rpm. सो उतना आपको इंटरसेप्टर पे भी मिल जाएगा और थंडरबर्ड 500 पे भी मिल जाएगा. तो आपको उतना डिफरेंस नहीं लगेगा ना. अगर आपको एक थोड़ा बहुत पावरफुल गाड़ी चाहिए
या और थोड़ा ज़्यादा टॉर्क वाला, हैवी टॉर्क वाला चाहिए, ज़्यादा स्टेबल गाड़ी चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट दैट you should not buy this. And of course, if you have a big bike on your list, then you should not go for it. Okay, because मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ. मैंने बेसिकली अभी तक अराउंड 3-4 टेस्ट राइड्स ले चुका हूँ. फर्स्ट टेस्ट राइड वॉज जस्ट फॉर अबाउट 1 किलोमीटर, बिकॉज उस टाइम पे जो डीलर के पास बाइक आई थी उस पर नंबर नहीं लगा था, तो मैं ज़्यादा दूर वो बाइक चला नहीं पाया. लेकिन फिर जब मैं 15 डेज़ के बाद फिर गया, दैन दे एक्वायर्ड ए नंबर एंड आई वाज एबल टू राइड इट अबाउट 5 किलोमीटर. फिर थर्ड टाइम में गया, मैंने थर्ड टाइम उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा चलाने दीजिए, तो मैंने 20-25 किलोमीटर के आसपास वो बाइक चलाई. सो मेरा ओपिनियन ये है कि आई विल नॉट बाय द NX 500. आई टेल यू द रीजंस वाई. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज़ नॉट अ जनरलाइज्ड ओपिनियन. ओके, ये मेरा पर्सनल मैटर है एंड इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. आई ऑलरेडी own Interceptor 650 and a Thunderbird 500. So power and torque figures are most exactly the same in this bike. Okay, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये awesome नहीं लगी बाइक. ओके, क्वालिटी वाइज डेफिनेटली इट इज़ गुड, बट इतनी awesome नहीं लगी मेरे को. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. देन सेकेंड थिंग इज़ बाइक का जो अर्गोनॉमिक्स है वो डेफिनेटली अच्छा है. सी, मेरा थंडरबर्ड 500 का अर्गोनॉमिक्स इज़ सुपर, इट्स स्पॉट ऑन. जब आप बैठेंगे तो आपका पैर एकदम ऐसा फ्लैट आता है. लेकिन जब मैंने NX 500 में बैठा तो द हैंडल इज़ नॉट वेरी मच क्लोज टू द बॉडी, यू हैव टू लीन स्लाइटली. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल नीड हैंडल बार राइजर्स इफ़ यू बाय द NX 500. एंड द फुट पैक्स आर वेरी स्किम्पी, मतलब साइज में बहुत छोटे हैं एंड दे आर स्लाइटली प्लेस बैकवर्ड्स. तो आपका फुट थोड़ा इंक्लिनेशन पर रहेगा एंड इट विल गो अ लिटिल बैक. सो इट इज़ अ मोर लाइक अ स्पोर्टी पोजिशन. ओके, and I would say that like a sports touring position. It's not a very relaxed cruiser kind of position, even though the bike has a wide handlebar, but still. So that is the second reason मैं नहीं लूँगा. Then third reason is, अगर आप ऑन रोड प्राइस यहाँ पुणे में लेते हैं तो 1.5 लाख 1,70,000 रोड टैक्स एक्सटेंडर वारंटी सब मिला के ही हो जाता है. सो फिर अराउंड 7.7 मतलब 8 लाख ही हो गया मान लो. फिर उस पर अगर आप एक्सेसरीज लगाओगे 1 लाख तक, तो 9 लाख की बाइक हो जाती है. So such I would like to prefer a segment higher, like a 650cc or a 750 Transam. I would definitely would like to go to that kind of segment, because मैं already एक 500cc और एक 650 mid size segment की बाइक में already चला रहा हूँ. तो I would definitely like to go for that. Then one of the final reasons is मुझे the looks are subjective. So मुझे इस बाइक के looks इतने कुछ बहुत ज़्यादा appealing नहीं लगे. Definitely the older CB500X से it looks a lot better than that, because they have changed the front fairing, they have changed the windshield design, they made the bike lighter. Okay, but it kind of looks like a mini Transalp. But to be honest, I was not very happy with the looks. मेरे को इतना मतलब from few angles the bike looks okay, it looks good, but from few angles it does not. Okay, and मेरे लिए basically next upgrade would be definitely a higher CC than this. Okay, and okay, so guys, that's all I had to express in this video. So please like my videos, please subscribe to my channel, and if you have any questions you can let me know, you can ask me. Okay, thanks, bye bye, thanks for watching.